Hello everyone, welcome back to my channel Chem with Dishika, and we are back with another set of video, and this time we are having the paper of 29 January shift 1. And till then, if you haven't watched my previous videos, we have already discussed the two papers, that is 27 January shift 1 and shift 2 paper. So do watch those videos also, and in this video we'll be discussing the complete chemistry video solutions with tips and tricks for the 29 January shift 1. In case if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe my channel and hit the like button in case you like my videos. So without any further delays, let's move on to our first question. So here we have our first question, wherein it is asking which of the following pair will be formed by the decomposition of KMnO4. First, try to understand from which chapter does it belong. It belongs to D block chemistry. Are you able to identify that manganese is a D block element that belongs to your 3D series? And it is a question that is directly asked from your NCERT. In your NCERT, your teachers must have told you to highlight this equation, that is the decomposition of KMnO4. So you know that KMnO4 decomposes into K2MnO4. You take 2 moles of KMnO4 and it decomposes into K2MnO4, MnO2 and O2. So here two different oxidation state of Mn is visualized. So this is the type of decomposition reaction wherein your KMnO4 breaks into K2MnO4, MnO2 and O2. So this is the key highlight of the reaction, and now you just have to tick mark that correct solution which contains all of the compounds that are forming. So here if I look at the option, the second option matches well because it says K2MnO4 and MnO2, which both are forming in the decomposition of K2MnO4, and when it is a decomposition reaction, we show this delta symbol that denotes heat, and this predicts that upon heating KMnO4 decomposes into K2MnO4 and MnO2. Alright, so you can also remember this equation by the oxidation state. Here manganese is present in +7 oxidation state, whereas if you count the oxidation state of manganese in this case, it will be 2 plus x minus 8, that is 0. So x is equals to +6. So here the oxidation state of manganese is +6 and here the oxidation state of manganese is +4. So +7 is getting decomposed into +6 and +4. So I hope this question is clear to you. Let's now move on to our another question. So here we have another question where we are given this reaction, and in this reaction we have to predict the products A and B. So if you look carefully, we are given a double bond in this compound which is made to react with Cl2. First, this is taking place in the presence of HNu. HNu indicates that it is a photolytic reaction. Right, that is taking place in the presence of photons, right? So photolytic reaction means here the reaction will proceed through the formation of a radical. So we know, we studied intermediates in GOC, right? Carbocation, carbanion, radicals, carbenes, right? So this is taking place through radical, and you have to attach Cl radical here. Cl2 will break up into Cl radical, and you have to attach Cl radical to that part of the compound that you are taking which gives you the most stable radical, just like carbocations. So here we know that allylic positions are the most stable positions, and this will prefer to attack on the allylic position. So allylic positions are these two, first and second, just adjacent to the sp2 hybridized carbon. This is sp2 hybridized carbon, and adjacent to this is your allylic position, and here preferably your radical gets attached because of the stability. So if I draw it here, then this is your double bond, and here the radical will be most stable. Why? Because of the resonance. It is involved in the resonance, and also due to the hyperconjugation. So hyperconjugation is here, that is hydrogen and hydrogen, that is alpha hydrogen. So it is also getting hyperconjugation from 2 alpha hydrogens plus resonance effect, which makes this radical the highest stable radical. So here the Cl will get attacked, and here your Cl will get attached, and basically this is the compound that you are looking for, and this is the product A which is formed.
Okay, so out of these four options, if I look at this option, so this is the allylic position. So this can be quite a possibility. So we'll keep this. In the second option, it is also same. So we are going to keep this option as well. In third option here, Cl and Cl are given. So this is not going to take place. So third is incorrect. If I talk about fourth, then in the fourth position, this is the allylic position, but instead Cl is attached to some other position, which is why this won't be getting formed, and hence fourth will also be incorrect. So now we are left with two options, and now we have to look for what exactly is B going to form. Right? So here in this case, this is also Cl. Okay. So here, if I talk about the B part, then CCl4 involves the formation of an intermediate that is called as the carbene, which is this. Okay. So whenever carbenes are there, they'll go via the addition reaction mechanism. So in the second B part, your addition reaction is going to take place. Okay. How addition reaction? Here you have your double bond and Cl2 will attack to it, and you will be seeing that Cl and Cl gets attached here, Cl and Cl. Okay, so this is the addition reaction product that you will be getting in the second case. Your double bond will be eliminated and Cl will get attached to both sides of the double bond, and hence the product will look like this. So if I match the correct options, then here the correct option will be the second one. In the first one, double bond is still there, but the addition reaction will take place via the elimination of the double bond, which is why first will be incorrect and the correct option will be my second one. So I hope this question is clear to you. You are able to understand that how we are proceeding through all of these questions. Let us now move on to our another question, which is my third one. So here also it is from organic chemistry, and it is testing your basic knowledge about the acid halides that we take. So the substrate is given to you and it is treated in the presence of conc HBr, which is present in excess. So excess means wherever all the possible sites are there, this HBr is going to attach, right? So if I talk about the first possibility, whenever we are given such halogen halide type molecule, then we know that here Markovnikov or anti-Markovnikov addition takes place. So benzene ring remains intact, but here I can see one double bond. So this double bond is going to show you this addition reaction wherein H and Br will get attached, right? Now this will take place in accordance with the Markovnikov rule, because no peroxide is present. So here Markovnikov rule is going to take place, and in accordance with Markovnikov rule, the negative part of this hydrogen halide gets attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atom. Right? So it will get attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen atoms. So if I talk about the hydrogen atoms here, so if you will see, here only one hydrogen atom is present, whereas here two hydrogen atoms are present. So preferably Br negative will attack over here at this position. Okay, so first addition will be taking place like this. Now here ether is present, and you know that ether in the presence of halogen halide, they break up, right? They break up into alcohol and alkyl halide. So basically the second reaction that is going to take place is the cleavage of ethers. Okay, so here this O negative and CH2 plus CH3. If you will homolytic cleave this ether, then what you are going to get is, let me just draw it here so that you can get more clarity on this. So this is O, CH2, CH3. This is like drawn here. Okay, and we have HBr. Now in case if you have any confusion, just draw the positive and negative charge. Oxygen being more electronegative will carry a negative charge. Carbon being less electronegative will carry a positive charge. Similar is the case with hydrogen and bromine. Attach negative with positive and positive with negative. So here O negative and H plus, and here Br negative and CH2 CH3. So the cleavage will take place like this.
Okay, so here after the complete addition, so here we have attached the bromine, right? So here we'll be getting one bromine, and here we'll be getting OH plus CH3 CH2 Br. So this is the final product that we are going to get in this case. So if I try to match all of the options, then I find that third one is the correct one, because here the cleavage of ether has also taken place, whereas Br has also taken place here in accordance with the Markov-Nikov rule. Alright, so the correct option will be my third one. So here, since HBr is present in excess, so you have to look out for all the possibilities that you can do in your substrate. So here ether was also present and double bond was also present, so both of the reactions will take place. So I hope you understood this question. Let us now move on to our another question. So here we have our fourth question, which says, which of the following coordination compounds has bridging carbonyl ligand? So आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके पास ब्रिजिंग कार्बोनाइल लीगेंड की प्रेजेंस है. व्हाट इज अ कार्बोनाइल लीगेंड? इट इज CO, बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड O. दिस इज योर कार्बोनाइल लीगेंड. ओके, अब आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. पर एक बात बताओ उससे पहले कि अगर आपको ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज तो आप किसी दो चीज़ों के बीच में बनाओगे, राइट? तो कोई दो चीज़ें तो होनी चाहिए, कोई दो पोल्स तो होने ही चाहिए. मतलब कोई दो मेटल्स की प्रेजेंस तो मतलब एक बेसिक प्री रेक्विजिट कंडीशन है ना. तो यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस तो डायरेक्टली आपके सामने एलिमिनेट आउट करके दिखाऊंगी कि अगर आप इसमें और इस ऑप्शन में देखोगे तो सिर्फ एक ही मेटल प्रेजेंट है. अब एक पोल से तो ब्रिज बनेगा नहीं, दूसरा पोल भी चाहिए. मतलब मिनिमम मेरे को यहाँ पर कितने चाहिए? मिनिमम आई नीड 2 मेटल्स. उसी के बीच में तो आप ब्रिजिंग करोगे ना, है ना. तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में तो सिर्फ एक ही मेटल प्रेजेंट है, क्रोमियम और आयरन. तो यहाँ तो कोई ब्रिज बनेगा नहीं, तो थर्ड और फोर्थ आप डायरेक्टली काट दो. अब आया आपके ऊपर कि मैंगनीज करेगा कि कोबाल्ट करेगा. ओके, तो अब यहाँ पर आपको उनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. तो इनमें क्या होगा, देखो मैंगनीज के बीच में ये इंडिविजुअली 5 CO मेटल्स को, CO लीगेंड को कंटेन करते हैं. कैसे करते हैं? 1 2 3 4 एंड 5 इंडिविजुअली हर किसी के पास 5 CO अटैच्ड है, तभी तो 10 बनेंगे ना. ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा. यहाँ भी अगर आप देखोगे तो CO 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 CO, तो इनके बीच में कोई ब्रिजिंग नहीं होती है, इनके बीच में सिर्फ एक मेटल बॉन्ड होता है. तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. तो कोबाल्ट जो है वो 3 के साथ, तो आपका ये this is your carbonyl ligand. Don't get confused between this. This is your cobalt metal and this is your carbonyl ligand. ठीक है. तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है? कोबाल्ट एंड हियर यू हैव CO एंड एक आपकी ब्रिजिंग होती है. ब्रिजिंग कैसे होती है? ऐसे होती है. दिस लुक्स लाइक दिस. सो दो कोबाल्ट मेटल के बीच में, दीज आर योर कोबाल्ट मेटल. ठीक है, जो दो कोबाल्ट मेटल हैं वो जुड़े हुए हैं 2 CO से ऊपर और नीचे. दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज, राइट? सो दे कंटेन 2 कार्बोनाइल ब्रिजिंग लिगेंड्स, विच इज वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी माई सेकेंड वन. तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाले केस में उसमें कोई ब्रिजिंग नहीं होती है, वेयर एज इन द केस ऑफ कोबाल्ट आपकी ब्रिजिंग होती है. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. Let's now move on to our another question. So here, let me just draw this structure again here to the right hand side in case if it is not visible to you. Let me just erase it and draw it again. CO. So we have 3 carbonyl ligands and 2 carbonyl ligands as the bridging ligands that are present, and we have 1 2
3, these all are carbonyl ligands, okay, and these are bridging ligands, okay. So this is the structure for your CO2 CO8. Let's now move on to our another question. So here we have energy difference between the actual structure of the compound and the most stable resonating structure having least energy is called. This is quite an easy question. So अगर आपको definitions की knowledge है, then you can easily answer this. So it is basically asking you कि the energy difference between the actual structure of the compound. So and the most stable resonating structure having least energy is the definition of resonance energy, what you call it as the resonance energy. Heat of hydrogenation is basically the energy that is required to convert your double bonds into single bonds. So that does not match this. This is incorrect. Resonance energy is actually the energy difference that we talk about, and it is between the actual structure of the compound and the most stable resonating structure which is containing the least energy. So if the structure is most stable, then obviously it will be possessing the least energy, which we know that the low energy compounds are stable in nature, right? So here the correct option will be the resonance energy. Similarly, heat of combustion is not the case, because heat of combustion is the energy required when energy released, since it is an exothermic reaction, when you treat your compound in the presence of oxygen, which breaks down into carbon dioxide and water and heat. So that is heat of combustion, and similarly it is not exchange energy. So the correct option will be the resonance energy. I hope it is clear to you. Let's now move on to our another question. So here we have another question which says, what is the effect that occurs between lone pair and pi bond? So this is also quite an easy question related to the resonance energy that we have just answered. So basically it is asking you the name of the effect which occurs between the lone pair and pi bond. So let's understand this with an example. So suppose I have a bond between X, Y and B. There is a double bond between Y and B, and here you have a lone pair on X. Okay, so whenever you feel any sort of confusion, just take any example and relate it with that. You will be getting your answer in minutes. So it is saying the effect that occurs between the lone pair and pi bond. This is your pi bond, this is your lone pair. So if I correctly see this kind of structure, then I know that this lone pair can donate electrons, because Y is having empty p orbital since it has made the pi bond, and since B also have empty p orbital, so this pi bond will, the electron density will get shifted towards B again, right? So I'll be able to draw one of the resonating structure that looks like X has donated, so it will be carrying a positive charge. Similarly here B has gained, so B will be carrying a negative charge, right? So this is one of the resonating structure that I'm able to draw through this equation that they have given, and this will be the again scenario which I'll be getting the first one if I revert this reaction. So this is able to show resonance, right? Because of the availability of lone pair and the vacant p orbitals in which it can show the resonance effect. So the correct answer will be resonance. They are able to show resonance, right? Inductive effect is basically your displacement of electrons. Their displacement of electrons occurs. So inductive effect will be incorrect. Hyperconjugation involves the sigma bond, right? So that is also incorrect, because here you have to tell between lone pair and pi bond. Okay, so first, second and fourth will be incorrect. Electromeric is again the displacement of electrons, which is why they all will be incorrect, and the correct option will be my third one. So I hope this question is also clear to you. Let's now move on to our another question. So here we have, which of the following statements is incorrect? So आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. पहली बात तो मोस्टली क्या होता है, हम क्वेश्चन को गलत देख लेते हैं, हम यहाँ पर करेक्ट मार्क कराते हैं. रीड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. ओके, तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, एंड इन द क्वेश्चन पेपर इट वाज डेल्टा जी. सो आप इसके आगे डेल्टा लगा सकते हो. डेल्टा का मतलब है चेंज. तो यहाँ पर आपको चेंज के लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस.
तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें पता है H2O लिक्विड, आप एग्जाम्पल कोई भी ले लो, दिस इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट, यही आपकी डेफिनेशन होती है जब आपका लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में होता है गैशियस वाटर के साथ, तो आप बोलते हो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। और इस स्टेप के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो 0 आती है, राइट। सो दिस इज़ योर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि हर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी 0 होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, विच इज़ माई इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मेरे को इनकरेक्ट बताना है ना। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब वो बोल रहा है कि डेल्टा जी नेगेटिव है मेरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आई नो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एच मेरा नेगेटिव होना चाहिए, right? So these are the basic thermodynamic parameters that are usually studied for a spontaneous process and this is absolutely true. So ये भी मेरा अलग गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे को इनकरेक्ट बताना है। अब उसने बोला डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। अब देखो दोनों बातें तो हो नहीं सकती, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अब थर्ड ऑप्शन में मेरे को अपना आंसर मिल गया। अब मैं डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकती हूँ क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव तो होता नहीं है, हमें पता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं फोर्थ की बात करूँ यहाँ पर, तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑब्वियसली करेक्ट। वाई? बिकॉज पॉजिटिव होगा। इसी का वाइस वर्सा कर दो, तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा मेरा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इट वॉज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है अल्कलाइन KMnO4 oxidizes iodide to a particular product A. Determine the oxidation state of iodine in compound A. Now to answer this question you must know this reaction. अगर आपको रिएक्शन पता है, अगर आपको ये पता है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आपको वहाँ पर कंपाउंड पता है और फिर आपको बस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल देना है। ओके, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? पहले आपको पता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी है, राइट। सो यहाँ पर हमें पता है कि अगर मैं लेती हूँ 2KMnO4 या मैं ले लूँ 2MnO4 नेगेटिव और अगर मैं H2O प्लस आयोडाइड का मतलब है आई नेगेटिव, है ना, आयन की बात हो रही है। तो जब मैंने इनका रिएक्शन करा तो MnO2 प्लस क्या बनता है मेरा? OH नेगेटिव, वाटर से OH नेगेटिव बनता है और मेरा बनता है IO3 नेगेटिव, ठीक है। या फिर मैं इसको KiO3 भी लिख सकती हूँ। तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए और इसी में ही उसने बोला है कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल दीजिए। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे? पहले आप लेट कर लोगे कि X है ना, और ऑक्सीजन पर 1 पर -2 है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वल्स टू पूरे कंपाउंड पर -1 चार्ज है तो -1 के इक्वल कर दोगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? X इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 दैट इज +5। तो यहाँ पर आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी? +5। तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी +5। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने ये क्वेश्चन कैसे करा है? इन केस दिस इज नॉट विजिबल टू यू, दिस इज 2MnO4 नेगेटिव। सो आई राइट दिस रिएक्शन अगेन ओवर हेयर। सो इफ यू टेक वाटर एंड आई नेगेटिव यू विल बी गेटिंग MnO2, 2OH negative and IO3 negative. Okay, so this is the reaction that I am talking about in this case. So the correct answer will be +5. So I hope आपको ये समझ आया होगा हमने कैसे करा है। Let's now move on to our another question. Okay, this question is from organic chemistry. और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले देखो आपको ये सबस्ट्रेट दे रखा है ना,
अब ये सबस्ट्रेट देखने के बाद आपने देखा यहाँ पर कि पहले इसे ट्रीट कर रहे हो आप H2O और H+ की प्रेजेंस में। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप? देखो वाटर भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से बना है, मतलब H+ और OH- आयन से बना है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाई है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाई भी इलेक्ट्रोफाई भी है और ये H+ की प्रेजेंस में हो रहा है ना। आप कुछ मत करो, आप कार्बोकटायन को जनरेट कर दो बस। सो ये आपका कंपाउंड था। अब यहाँ पता है आपको कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस पोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बन रहा है ना, और रेजोनेंस वाला हमको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। अब जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है वो इस पर फटाफट आएगा और अटैक कर देगा। वो बोलेगा मेरे को तो बस नेगेटिव देखना था, जैसे ही मैंने नेगेटिव देखा वैसे ही ये खुश हो गया, और खुश होने के बाद इसने क्या करा, यहाँ पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा OH अटैक हो गया। ठीक, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में आया CrO3। CrO3 का क्या काम होता है, जल्दी जल्दी सोचो। CrO3 का काम होता है कि वो इसको ऑक्सीडाइज करे। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है ना क्रोमियम ऑक्साइड, तो अब ये मेरा सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल है तो फिर क्या करेगा, मेरा ये ऑक्सीडेशन कर देगा इसको डबल बॉन्ड O में। ठीक है, तो यहाँ ये ऑक्सीडाइज कर देगा। मेरे को बस बना, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर। सो ये ऑक्सीडाइज कर देगा डबल बॉन्ड O में। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज करने के बाद ये क्या करने वाला है, यहाँ पर NH2NH2KOH, देखा देखा सा लग रहा होगा ये आपको। कौन सा रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। क्या करता है वुल्फ किश्नर रिएक्शन? वुल्फ किश्नर रिएक्शन मेरा डबल बॉन्ड को हटा देता है। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन आपको याद होगा, हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये मेरा डबल बॉन्ड O को हटा देगा, है ना। और हटाने के बाद क्या करने वाला है, ये मेरा देने वाला है ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ ये वाला कंपाउंड। ठीक है, एक मिनट, हम इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम। Okay, let me just draw it here. Yes, तो हमने क्या करा, हमने लिया ये और यहाँ पर आ गया हमारा ये वाला कंपाउंड जो बन रहा है। ठीक है, अब अगर मेरे को ऑप्शंस में से मैच करना है तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब देखो डबल बॉन्ड NNH2 हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, ये बनेगा ज़रूर, लेकिन KOH की प्रेजेंस में ये भी ग्रुप एलिमिनेट आउट हो जाएगा, और इसलिए आपको एंड प्रोडक्ट पर फिनिश करना है। और इसका काम होता है कि यहाँ पर आप क्या करो, इस डबल बॉन्ड O को हटा दो। ठीक है, सो तभी आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला तो है ही, ये तो आपका बन ही नहीं रहा है दूर दूर तक, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पॉजिटिव ढूंढो नेगेटिव ढूंढो, पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक मतलब अटैच कर दो आप। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर दो पोजीशंस है, ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, कहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो आपको देखना है सबसे पहले। ठीक है, एक बार आपने ये देख लिया कि कहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, फिर नेगेटिव को अटैच करवा दो, OH नेगेटिव को अटैक करा दिया, फिर आपने उसकी ऑक्सीडेशन कर दी, ऑक्सीडेशन करने के बाद NH2NH2KOH। अगर आपको ये भी नहीं पता कि CrO3 क्या करता है, आपको ये रिएजेंट तो ध्यान होगा ना कि इसका क्या काम होता है, ये आपका डबल बॉन्ड O को हटा देगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड O बन रहा होगा और वो उसको हटा देगा, तो एंड प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड O तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप रिएक्शंस को ऐसे सोच सकते हो और ट्राई कर सकते हो। सिंस ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन था तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली एलिमिनेट आउट भी कर सकते हो। करेक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
So here we have next question, which is a container contains 1 gram of hydrogen gas and 1 gram of O2 gas. उसने बोला एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर 2 गैसेस हैं, 1 ग्राम H2 है और 1 ग्राम O2 है. What is the ratio of partial pressure of hydrogen and O2? उसने बोला मेरे को रेशियो बता दो पार्शियल प्रेशर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. तो मेरे को ये बताना है. कैसे निकालूंगी? देखो, जब भी आपको मास दे रखी हो, पार्शियल प्रेशर हो, पार्शियल प्रेशर का तो मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. यही मैंने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर का और यही मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगी. कैसे यूज़ करूँगी बस वो देखना है. अब देखो, सबसे पहले मेरे को पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालना है और मेरे को इनकी रेशोज़ लेनी है. अगर मैं इनकी रेशोज़ लूँगी तो देखो ये तो कट ही जाएगा ना टोटल प्रेशर, इसका तो मेरे को कुछ काम ही नहीं है, ये तो कट ही गया. अब जो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ऐसे ही सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स. कट गए ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अरे वाह, अब तो बस मेरा कोई सारा काम आसान हो गया. यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कैसे निकालूंगी, गिवन मास ओवर मोलर मास से निकाल लूंगी. तो यहाँ पर 1 ग्राम तो उसने गिवन मास दे रखा है और सिंस H2 है तो इसलिए मोलर मास 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया ना. अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, ऑक्सीजन का गिवन मास भी 1 है और मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा. वो मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी क्योंकि 1/32 तो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में ही जाएगा ना. तो 2 और 32 कैंसिल हो जाएंगे. इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 16/1. तो जो रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी 16:1. बस यही तो करना था, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर. सो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16:1. सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. हमने कैसे करा, सिर्फ फॉर्मूला यूज करा, रेशियोज ली, कैंसिल करा, नंबर ऑफ मोल्स लिए, गिवन मास ओवर मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करा एंड हेंस वी आर हियर एट द आंसर. ठीक. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू अगेन. लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन. Okay, let's move on to our another question, which is, तो इधर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेज मैच द फॉलोइंग. तो इधर आपको ओर्स दिए हुए हैं और इन ओर्स को आपको मैच करना उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूला से. सो सबसे पहले फ्लोरोस्पार. फ्लोरोस्पार एज द नेम सजेस्ट इज गोइंग टू कंटेन फ्लोरीन, राइट. तो ये आपको सुना सुना सा लग रहा होगा फ्लोरोस्पार. फ्लोरोस्पार आपका होता है CaF2. तो जो आपका A है वो मैच कर जाएगा Q के साथ, विच इज़ योर CaF2. नेक्स्ट इज क्रायोलाइट. क्रायोलाइट भी आपने नाम सुना सुना सा लग रहा होगा. क्रायोलाइट आपको कुछ एल्यूमिनियम से याद आ रहा होगा और फ्लोरीन से याद आ रहा होगा. क्रायोलाइट आपने यूज़ करा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Na3AlF6. सो B का जो करेक्ट मैच हो जाएगा वो हो जाएगा S. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बॉक्साइट. बॉक्साइट तो देखो कॉमन हो रहा है, ये तो आपने याद पक्का कभी ना कभी करा ही करा होगा. सो बॉक्साइट जो है वो आपका मैच कर जाएगा P से, विच इज़ Al2O3.2H2O. सो बॉक्साइट आपका C जो हो जाएगा वो P से मैच कर जाएगा एंड D इज डोलोमाइट. सो एक ही बचा. अब तो भाई डोलोमाइट तो देखो मेरे को पता ही था. डोलोमाइट इज RMgCO3.CaCO3. डोलोमाइट ऑनेस्टली याद नहीं था मेरे को, लेकिन ठीक है, मेरे को कुछ कुछ आइडिया थे तो आई वॉज एबल टू डू दिस. तो डी मेरा हो गया R. तो यहाँ पर अगर मैं इन सारे ऑप्शंस को देखूँ तो इट शुड बी QSPR. सो दिस इज QSPR. ये करेक्ट मैच हो गया. सो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो सी कितने ओर्स मैंने याद करे हैं, यू कैन सी ना. ओके. सो लेट्स मूव ऑन अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है, which of the following elements is or are confirmed by the appearance of blood red color with FeCl3 in Lessigny's test. सी यहाँ पर ना आपको लैब की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और ब्लड रेड कलर वाला कॉम्प्लेक्स आपने मतलब काफ़ी बार आई थिंक लैब में तो करा ही करा होगा. तो
सबसे पहले लेसैग्नेस एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए वहाँ पर आपका नाइट्रोजन और कार्बन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर आप सोडियम के साथ इनका कॉम्प्लेक्स बनाते हो, कार्बन, नाइट्रोजन और सोडियम, और यहाँ पर आपका सल्फर भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपका बनता है NaSCN। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो आपका Fe या FeCl3, Fe आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जो SCN नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है FeSCN, और यहाँ पर आपका हो जाता है 2+, ठीक है, बिकॉज जो आपका Fe होता है दैट इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है आपका ब्लड रेड कलर का। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज FeSCN 2+। और उसने बस यही पूछा है कि इनमें से कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो कंफर्म होते हैं इससे। तो यहाँ पर आपका सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फर की जो प्रेजेंस होती है ना वो कंफर्म होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी माई सेकेंड वन। देखो इतना तो आपको याद होगा कि जो कॉम्प्लेक्स था वो कुछ रिलेटेड था FeSCN से, तो ये आप यूज़ करते हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन, राइट। सो दिस इज द ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, और इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बाय सेकेंड वन। So I hope this question is clear to you. Let's now move on to our another question. So here we have two statements, and out of these two statements we have to identify either both of them are correct or none of them are correct or only one of them is correct. So let's have a look at those. Statement 1 says electronegativity of group 14 elements decreases from silicon to lead. अब ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली है ना। तो क्या होता है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट। तो यहाँ पर आपका जो होता है Sn और Pb होता है, उसने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। देखो जब भी मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, दैट इज ट्रू। बट अब अगर उसने दिया है तो कुछ तो होगा, है ना, दाल में कुछ तो काला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा कि अब यूजुअली तो करती है, वो तो बोलेगा बच्चा फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन हम भी तो चालू है ना, हमें क्या करना है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड यूजुअली डिक्रीज करती है, बट यहाँ आ जाती है एक्सेप्शन। इस केस में क्या हो जाता है कि लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मिल जाती है, किससे, टिन से। अरे रे ये क्या हो गया, होनी तो लेड की कम चाहिए थी लेकिन लेड की ज़्यादा हो गई, है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। तो ये स्टेटमेंट 1 मेरी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर मेरे दो ऑप्शंस तो एज इट इज गए, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट 2 है, सॉरी ये वाला ऑप्शन गया, मेरा थर्ड ऑप्शन गया, जहाँ पर वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारी करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 बोलती है ग्रुप 14 हैज मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। देखो ग्रुप 14 में अब क्या क्या आता है, कार्बन क्या है मेरा, कार्बन है मेरा नॉन मेटल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है मेरे, मेटेलॉइड्स, ये भी सही है, मेरे को नॉन मेटल मिल गए, मेटेलॉइड्स मिल गए, और टिन और लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, मेटल्स। तो इसका मतलब ग्रुप 14 मेटल्स में, ग्रुप 14 के पास मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी और मेटेलॉइड्स भी है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है, बट फर्स्ट वाली फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट ऑप्शन ढूंढूं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, विच से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा एक्सेप्शंस, ये आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि यूजुअली डिक्रीज करती है, बट ग्रुप 14 में होना चाहिए था कि लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती टिन से, बट इंस्टेड उल्टा हो जाता है कि लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मिल जाती है टिन से, विच इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वन। So I hope this question is clear to you. Let's now move on to our another question. अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स गिव्स विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। देखो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। आपको पता है जो प्रोटीन्स होते हैं वो बनते हैं अल्फा अमीनो एसिड से, है ना। तो अगर मैं उनको तोड़ूंगी तो तोड़ने पर भी तो सेम वही मिलेगा ना जिससे बने हैं,
तो बने किससे थे, अल्फा अमीनो एसिड से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अल्फा अमीनो एसिड्स, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एंड ऑल्सो अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होता है, उसी कार्बन के पास आपका NH2 ग्रुप भी होता है और COH ग्रुप भी होता है। सो दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड। मतलब यहाँ पर NH2 भी उसी कार्बन के साथ अटैच्ड है और COH भी उसी कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो दीज टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल इन आवर लाइफ। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं और कोई अमीनो एसिड नहीं मिलता है। So I hope this question is also clear. This was a factual question which you have to answer. So I hope this is clear to you. Let's now move on to our another question. अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगेन दो स्टेटमेंट्स गिवन है और मेरे को ये बताने इनमें से दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है या कोई एक करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। वो बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में डिक्रीज करती है। इज इट ट्रू? आप खुद सोच कर देखो, जब भी आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी तो मेरी बढ़ रही है ना। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन उसी सेम शेल में ऐड होता जा रहा है, विच मीन्स मेरा जो नेट जेड इफेक्टिव है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही मुश्किल होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना। आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल इन इट्स गैसियस स्टेट, है ना। तो सिमिलरली अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरा जेड इफेक्टिव जितना कम होगा उतनी ही मेरे को कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि अब उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, बट अक्रॉस अ पीरियड उसका साइज छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपकी ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। वो बोल रहा है इन अ पीरियड जेड डोमिनेट्स ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि जेड तो आपका ऑब्वियसली डोमिनेटिंग है ही ना, तभी तो वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, विच इज़ वाई जो आपकी नेट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वो इंक्रीज कर रही है अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू हो गई है, क्योंकि वहाँ पर आपका जेड डोमिनेट कर रहा है, बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स हो गई है। तो इसका भी जो आपका करेक्ट आंसर है दैट विल बी 4th। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स नाउ मूव ऑन टू अवर अनदर क्वेश्चन। So here we have a question from organic chemistry and if in case if it is not visible to you, क्या है, एनिलीन दे रखा है उसने, एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NH2 ग्रुप है और इसको ट्रीट कराया है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 इज योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड। और आपका A पूछा हुआ है इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट ना पूछकर उसने इंटरमीडिएट पूछ लिया है। इवन इफ यू नो द प्रोडक्ट यू कैन ईजिली टेल व्हाट इज द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड दे रखा है आपको जहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब NH2 का आप नेचर सोचो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, कैसा है। NH2 हैज़ अ लोन पेयर ऑन itself which is making it electron rich in nature, and due to its electron rich character it is able to donate electrons to the ring। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। बोल रहे मैम क्यों इतना घुमा फिरा कर बता रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो पता चल गया। अब इसके बाद मेरा Br2 है। अब Br2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक पर डेल पॉजिटिव होगा, एक पर डेल नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव वाला ही अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। ये तो मेरे को न्यूक्लियोफाई तो मिल गया ना, मेरे को अब कमी तो इलेक्ट्रोफाई की है। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ ऑर्गेनिक में पॉजिटिव ढूंढो, नेगेटिव ढूंढो, दोनों को अटैक करा दो। न्यूक्लियोफाई पूरी बेंजीन रिंग खुद पाई बॉन्ड से बनी हुई है, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दिखाएगी मेरा, है ना। तो यहाँ पर अब मेरे को Br को एज अ इलेक्ट्रोफाई अटैक कराना है, और सिंस NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्रिएट करेगी? ऑर्थो
और पैरा पोजिशन पर। सो जो बी आर आपका इलेक्ट्रोफाई है वो या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर बी आर पर अटैक पैरा पर अटैक करेगा, राइट। मेटा पर तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बी आर एक इलेक्ट्रोफाई है और इलेक्ट्रोफाई वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देख लो, है ना। तो फिर यहाँ पर आपका जो बी आर है वो कहाँ पर अटैक करना चाहेगा, वो अटैक करना चाहेगा किस पर, इस ऑर्थो पोजिशन पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो दिस विल बी NH2, आपने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ब्रोमीन और H। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव बना तो यहाँ पॉजिटिव बना हुआ, एक डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद हेट्रोलिटिक क्लीवेज करो तो ये पॉजिटिव बना होगा, है ना। और अगर मेरे को इसे दोबारा एरोमेटाइज करने, सिंस उसने इंटरमीडिएट पूछा है इस केस में, तो दोबारा एरोमेटाइज करोगे तो ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, NH2 यहाँ पर और Br यहाँ पर, है ना। तो ये तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, जहाँ पर आपका इंटरमीडिएट शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्रोमीन है ना, वो ब्रोमीन आपका अटैक हो रहा है किस पर, ऑर्थो पोजिशन पर, ठीक है। और वेरास यहाँ पर जो ब्रोमीन अटैच हो रहा है वो आपका हो रहा है मेटा पोजिशन पर। अब मेटा पर तो सवाल ही नहीं है कि ब्रोमीन आएगा, क्योंकि वो तो वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा या तो ऑर्थो पर है या पैरा पर है। और अगर ऑर्थो और पैरा का भी ऑप्शन दिया हुआ होता तो वहाँ पर आपका पैरा मेजर बनता है, क्योंकि जो ऑर्थो होती है उसमें हिंड्रेंस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि NH2 भी एक ग्रुप है और Br भी ग्रुप है, तो दोनों आपस में रिपल्शन कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका ये ऑर्थो वाला नाम मेजर बन के पैरा वाला मेजर बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, हमने ये क्वेश्चन कैसे करा है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर अगेन मैच द फॉलोइंग में ना कुछ नहीं होता है, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो यू विल बी एबल टू डू दिस। अब आपने विल्किंसन कैटलिस्ट जैसे जो बहुत बार सुना होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बहुत बार सुना होगा, हीमोग्लोबिन बहुत बार सुना होगा, इवन आपको विटामिन B12 का याद भी नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर विटामिन B12 की ही बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो मेटल होता है ना वो होता है कोबाल्ट, तो ए का आपका मैच हो जाएगा Q, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो रोडियम के कॉम्प्लेक्स में ये हो जाएगा आपका S, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है RH PPH3 होल थ्राइस Cl। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स जो आप जिसे आप विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हो। नेक्स्ट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद होगा, पॉलीथीन वाला है ना, टाइटेनियम वाला पड़ा है ना जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो C का क्या हो जाएगा, P। ये आपका TiCl3 जो कॉम्प्लेक्स होता है वही वाला बन जाएगा, है ना। और हीमोग्लोबिन आपका क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको TiCl3 लिख लो या फिर TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस, ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हीमोग्लोबिन में आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है आयरन, तो आयरन का जो करेक्ट मैच है वो है R, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट वो हो जाएगा दैट इज QSPR। तो QSPR आपका किस में गिवन है, फर्स्ट में गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने कैसे करा है, बस आपको इसमें मेटल्स याद करने थे और आपको मैच करना था। ओके अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है K2Cr2O7। देखो इस पेपर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको मिलेगा, काफ़ी सारी रिएक्शंस पूछी हुई है और डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी हुई है। अगर आपको रिएक्शंस याद है तो आप कंपाउंड निकालो, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया है या उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया है, उसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पेपर में मैंने देखा, ऑब्जर्व करा कि पूछा गया है। तो कोई भी रिएक्शन तो देखो आपको स्किप नहीं करनी है, स्पेशली कोई भी करो ना करो, लेकिन डी ब्लॉक की तो आपको बिल्कुल कुछ भी हो जाए किसी कीमत पर मिस ही नहीं करनी है, बिकॉज उसी से आप खुद देख सकते हो कितनी सारी रिएक्शंस पूछी हुई है। तो ये भी हम देख लेते हैं क्या है। 18th में K2Cr2O7 है, H2O2 के साथ ट्रीटमेंट कराया है H2SO4 को इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर कोल्ड कंडीशंस एंड कंपाउंड X इज फॉर्मिंग। वो बोल रहा है X कोई क्रोमियम का कंपाउंड है और उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो क्रोमियम की, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर +10 करके आए होंगे, बिकॉज उन्हें इवन इफ दे न्यू द कंपाउंड दे डिडंट नो द स्ट्रक्चर।
अगर आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप गलत करके आओगे बेटा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। K2Cr2O7, let me just write the reaction here. K2Cr2O7 को आपने ट्रीट कराया H2O2. H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पर H2O2 को आपने H2SO4 के साथ ट्रीट कराया और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, जो X की बात हो रही है वो हो रही है CrO5 की, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका बनता है K2SO4 और वाटर। अब देखो CrO5 आपका कंपाउंड बन गया, CrO5 इज योर X। अगर मैं वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती तो मैं फटाफट क्या करती, X प्लस -2 इंटू 5, क्योंकि एक उस पर -2 चार्ज होता है और 0, तो X इज इक्वल्स टू +10। चलो भाई चलो आंसर मार दो। लेकिन बेटा क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 हो सकती है, आप कैसे भूल गए इस चीज़ को। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है क्रोमियम की, आर्गन 3d5 4s1 होती है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसकी +6 हो सकती है, तो +10 तो हो ही नहीं सकता ना, +6 के ऊपर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कैसे आपने +10 कर दिया। तो यहाँ आपको जाना था उसके स्ट्रक्चर पर। अगर आपको पता है CrO5 का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, तितली जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर दिया होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, बटरफ्लाई का नाम लिया तो बटरफ्लाई तो बनानी ही पड़ेगी ना, मेरे को 5 ऑक्सीजन को एकोमोडेट करना है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करूँगी। अब क्या होता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आपने रिडॉक्स में सीखा होगा कि आप बॉन्ड ब्रेकिंग की हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। क्या करना है, मैं अगर इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो इस पर -2 आएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो दूसरे वाला आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा +2, ठीक है। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगी, इस पर -1, इस पर +1, है ना। ऐसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इधर से +1, इधर से +1, इधर से +1, राइट। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर ब्रेकिंग ऑल ऑफ दीज बॉन्ड्स यू विल गेट, यहाँ आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल कम आउट टू बी +6, ओके। 2 + 1 3 4 5 and 6, so the correct answer will be +6. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पर इवन इफ़ यू नो कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है, और कुछ भी आंसर मार्क करने से पहले एक बार लॉजिकली सोच लिया करो कि क्रोमियम क्या +10 में एग्जिस्ट एक्चुअली कर सकता है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखो, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पर अगर आपको बॉन्ड ब्रेकिंग में कन्फ्यूजन है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं इस पर आपको पूरा लेक्चर, आई विल टेक वन लेक्चर वेर इन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आप स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हो इन एक्चुअल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो Okay, so let's now move on to our another question where we are given this reaction equation and we have to tell what is the balancing stoichiometry values for this reaction equation. So this is from your redox chemistry, and if you will see correctly here, then here OH negative is given, which means the reaction is taking place in the basic medium, so you have to accordingly balance in the basic medium. So even if you don't know how to balance it, what you can do is you can just simply substitute all of the values of x, y, z and p, and after substituting the values, all you need to do is you just need to check if all the atoms and all the charges are balanced to the left hand side and right hand side equally. If both the atoms as well as the charges are balanced, then you can tick mark that option. No need to balance it out. You can just one by one substitute all of those options and then you can see it accordingly. Okay, but let me just tell you here that what is the procedure or the step that we are going to use it. So Cl2 is basically, this Cl2 is in the oxidation state 0, wherein Cl atom is in 0 oxidation state, and here Cl is in -1 oxidation state, and here ClO negative, here Cl is in +1 oxidation state.
So basically this is the decomposition reaction of Cl2 wherein it is getting reduced to Cl negative and oxidized to ClO negative. So first we are going to write the oxidation half reaction, and then we are going to write the reduction half reaction, and after that we'll be balancing them out. Okay, so firstly this Cl2 is getting reduced to Cl negative. So this is your reduction half reaction. So this is your reduction reaction wherein this is in 0 oxidation state and this is in -1 oxidation state. First you need to balance the number of atoms. So here I must add 2 because here there are 2 Cl atoms and here there will be 2 Cl negative atoms, right? So they must take up 2 electrons because now here there is a negative of 2 charge, -2 charge, -1 for 1 chloride atom and -2 for 2 chloride atoms, right? तो यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका Cl2 है वो कन्वर्ट हो रहा है ClO नेगेटिव में. सिमिलरली यहाँ पर आपके 2 Cl हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी रिडक्शन हाफ हो गई और ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ हो गई. अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है तो मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा OH नेगेटिव. अब अगर आप वैसे भी देखोगे द नेक्स्ट स्टेप इज टू आफ्टर बैलेंसिंग द एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स नाउ यू हैव टू बैलेंस द चार्जेस. अब यहाँ फर्स्ट हाफ में देखोगे तो यहाँ भी -2 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी -2 है, तो दोनों साइड चार्जेस तो बैलेंस्ड है. बट अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ में देखूंगी तो यहाँ मेरा 0 चार्ज है वेराज राइट हैंड साइड -2 फ्रॉम दिस ClO नेगेटिव और -2 फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर -4 चार्ज है. तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड -4 नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है सो दैट मेरे चार्जेस बैलेंस हो जाए. उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं 4 OH नेगेटिव को डाल दूँ क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है. तो 4 OH नेगेटिव प्लस Cl2 गिविंग 2 ClO नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, अब देखो यहाँ पर 4 OH नेगेटिव आ गया, मतलब अब मेरे को वाटर भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन मेरे लेफ्ट हैंड साइड तो है बट राइट हैंड साइड नहीं है. तो यहाँ पर मेरे को 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि मेरे को 2H2 इसको बैलेंस करना है. ऑल्सो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और मेरे को 2 ऑक्सीजन और चाहिए. 2 तो ClO नेगेटिव से मिल गए, 2 ऑक्सीजन और चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करूँगी. सो वाटर मैंने न्यूट्रलाइज बैलेंस करने के लिए यूज़ करा. अब मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ वाली रिएक्शन आ गई और रिडक्शन हाफ वाली रिएक्शन आ गई. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो. सिंपली दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 Cl2 प्लस 4 OH नेगेटिव इज गिविंग यू. अब यहाँ पर आपका वाटर तो गिवन है नहीं रिएक्शन इक्वेशन में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिख भी दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसने उसको स्टोइचियोमेट्री में इंक्लूड नहीं करा है. तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 Cl नेगेटिव 2 ClO नेगेटिव प्लस 2 वाटर. अब मेरे को अगले स्टेप में, अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अब यही स्टोइचियोमेट्री लिखा हो. अगर ये सिंपलेस्ट होल रेशियो में कन्वर्ट हो सकती है तो अगर मैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर दूँ ताकि मेरे को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाए तो वही मेरी स्टोइचियोमेट्री होगी. तो ये क्या हो जाएगा, Cl2 2 OH नेगेटिव गिविंग Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव. ठीक है, तो अब आप स्टोइचियोमेट्रीज देख लो. यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर आपकी z की वैल्यू क्या है 1 और p की वैल्यू क्या है 1. ठीक है, तो यहाँ आपने x, y, z और p की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 1 2 1 1. तो यहाँ आप ऑप्शन देखोगे 1 2 1 1, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. और अगर आपको बैलेंसिंग समझ नहीं आती है कुछ मत करो, सब्सटीट्यूट करके देख लो. सब्सटीट्यूट में बस इतना ध्यान रखना एटम्स बैलेंस होने चाहिए और चार्जेस बैलेंस होने चाहिए. ठीक है, अगर आपने ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर ली है तो इसका मतलब आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक है. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को रुबीडियम दिया हुआ है 37 और उसने बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसको कैसे अप्रोच करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखो पूरी की पूरी रुबीडियम की, और रुबीडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये देखोगे कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका कौन सा क्वांटम नंबर आपका आ रहा है. ठीक है,
तो बेसिकली रुबीडियम के नियर बाय आपका आई थिंक क्रिप्टॉन होता है, और क्रिप्टॉन के आगे आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बट इधर हम पूरी लिख कर देख लेते हैं सो दैट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। 1s2 2s2 2p6, मेरे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s2 3p6, अब मेरा यहाँ पर 3d10 आ जाएगा और 4s2 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद मेरे 20 हो गए, 20 के बाद ये 30 हो गए। अब मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, तो इट विल बी 4p6 और 5s1। तो जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 5s में आ रहा है, तो मेरे को इसके लिए क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। तो देखो इसके लिए n की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 आ गया। l की वैल्यू क्या आ गई, s के लिए क्या होती है l की वैल्यू 0, ठीक है। ml की वैल्यू क्या होती है -l से +l होती है, तो जब l ही 0 है तो ml भी 0 हो जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में स्पिन, अब स्पिन आपकी +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस में देखूँ तो करेक्ट सेट क्या हो जाएगा 5 0 0 +½ ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 दे रखा है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 दे रखा है और यहाँ पर भी 1 दे रखा है, तो ये बाकी सारे तो इनकरेक्ट हो जाएंगे और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, और इवन अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी आती ना, आपको पता है रुबीडियम किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1, ठीक है। अब ग्रुप 1 को बिलोंग करता है तो आपको पता है कि क्या होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, तो वहाँ पर तो 5s1 ही आने वाला है ना, और 5 तो सब में सेम ही है, और आपको पता है s में 1 आएगा, तो आप s1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, ठीक है। तो रुबीडियम बस आपको पता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट है, और ग्रुप 1 की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 टाइप ही होती है, n तो हर किसी में सेम ही है, इसमें 5 5 5 तो 5s1 ही होगी, कुछ भी नहीं करना था, कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आती तो वो भी छोड़ दो, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, एंड बिफोर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, अब आपका सेक्शन खत्म हो चुका है, कंग्रेचुलेट योरसेल्फ, आपने बहुत अच्छा करा, आपने 20 के 20 क्वेश्चंस करेक्टफुली करे। अब आप जाने वाले हो सेक्शन बी की तरफ, जहाँ पर है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू नहीं मिलने वाले, इंस्टेड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप मिलने वाली है, जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है अपना आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, या फिर 2 डेसिमल पॉइंट्स तक अगर आपका वो आंसर आ रहा है एज पर द क्वेश्चन। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स दोज क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, परसेंट वेट बाय वेट of solute is 36% and molecular weight of solute is 36 ग्राम पर मोल। देखो कंफ्यूज नहीं होने का, घबराने का नहीं, कुछ नहीं करने का, आपको सिर्फ मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है, तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले लो आप, और आप ले लो वॉल्यूम। अब अगर मेरे को डेंसिटी कहीं कहीं दिख रहा है तो वॉल्यूम और डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि मास ले लेती हूँ और उसको मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूँगी। अब आपको यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सिंस आप वॉल्यूम अपनी लीटर्स में लेते हो, तो डेंसिटी अगर आपको मिलीलीटर्स में दे रखी है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे सो दैट यू गेट योर आंसर इन लीटर्स, ठीक है। जब भी आप वॉल्यूम लिखते हो तो आप उसको लीटर्स में लेते हो ना, तो वही मैंने करा कि डेंसिटी सिंस ml में दे रखी है तो इसलिए मैंने उसे 1000 से डिवाइड कर दिया सो दैट आई गेट माई आंसर इन लीटर्स। अब आपको जो मेन काम है वो क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब देखो मैं सॉल्यूट कैसे निकालूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसने परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 36% और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। मोलर मास तो मेरे को मिल गया 36 ग्राम। अब गिवन मास मैं कैसे निकालूंगी, सिंस उसने परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है तो इसका मतलब समझो, परसेंट वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि मेरा 36 ग्राम ऑफ सल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में। मतलब टोटल मास इज 100 ग्राम और उस 100 ग्राम में से 36 ग्राम मेरा सल्यूट है। इसका मतलब ये होता है, परसेंट वेट बाय वेट का मतलब ये होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको गिवन वेट भी मिल गया, दैट इज 36, है ना, क्योंकि 36 ही तो है ना आपका गिवन वेट, और 36 ही आपका मॉलिकुलर वेट है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप 36 को 36 से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल गया 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1। और अब यहाँ पर जो मास है, अब ये मास आप टोटल मास लोगे, क्योंकि डेंसिटी आपको सॉल्यूट की दे रखी है ना। तो टोटल मास तो 100 ग्राम से ही है, तो आप उसी को लोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1 ओवर मास कितना था 100, टोटल मास 100 है, डेंसिटी 1.5 दे रखी है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, क्योंकि ये मेरी ग्राम्स पर लीटर में है, और इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स लीटर में, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसका 1000 इंटू 1.5 ओवर 100, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो गया 15। तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। सो इट वॉज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी डायरेक्टली वॉल्यूम ना देकर उसने डेंसिटी दे दी। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, और परसेंट वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि उतना आपका पर 100 ग्राम प्रेजेंट है, राइट। 36% का मतलब 36 ग्राम आपका सोल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, तो वहाँ आपने कन्वर्जन कर ली। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड दिस आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। लेट्स नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, के नेट दे रखा है K1 K2 ओवर K3, EA1 EA2 EA3 दे रखा है, आपको EA नेट निकालना है। दिस इज़ क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। आपको जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो ये वाला रिलेशन बहुत बार हाईलाइट कर करके पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपको पता है कि इसका अगर मेरे को अरिथमेटिक एल्जेब्राइक फॉर्म लिखनी है के की, तो मैं कैसे लिखूँगी। अगर के मल्टीप्लिकेशन में है तो मेरी जो EA है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो EA जो नेट है वो क्या हो जाएगी, सिंस K1 इंटू K2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा EA1 प्लस EA2। अब K3 डिवीजन में है, और अगर डिवीजन में होती है तो माइनस हो जाता है, दैट इज़ EA3। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर K1 इंटू K2 होता है तो EA1 और EA2 ऐड होती है, और अगर डिवीजन में होता है तो माइनस हो जाती है। ये आपका अर्हेनियस इक्वेशन से आता है, K इज इक्वल्स टू AE रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT। आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बस आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। 40 प्लस 50 माइनस 60 दैट इज़ 90 माइनस 60 विच इज़ इक्वल्स टू 30 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 किलो जूल्स पर मोल, एंड योर आंसर विल बी 30। सी हाउ सिंपल इट वॉज। बस आपको ये चीज़ करनी थी और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट इज गिवन बाय। सो आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और ये बोला गया है कि इनमें से कौन से फेलिंग सोल्यूशन को रिस्पॉन्ड करेंगे। अब देखो टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट आप किसके लिए करते हो, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड्स। अगर मेरे को अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो मैं टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट का यूज़ करती हूँ। मेरे अल्डिहाइड्स रिस्पॉन्ड कर देते हैं, वेराज मेरे कीटोन्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, है ना। तो बेसिकली फेलिंग्स टेस्ट जो है वो सारे अल्डिहाइड्स देते हैं। तो जितने भी अल्डिहाइड्स होते हैं वो पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। सो जो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। तो अगर मेरे को एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो फिर मैं इस टेस्ट का यूज़ कर सकती हूँ कि जो फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तो नहीं देंगे बट एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देंगे, ठीक है। सो इनमें से अगर मैं बात करूँ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो एरोमेटिक है तो ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। अगर मैं इसकी बात करूँ ये भी एरोमेटिक है ना, NO2 बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये भी नहीं देगा, ये दे देगा क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है ना। दिस इज एलिफैटिक। तो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज 5 ओनली 3 अल्डिहाइड्स विल गिव मी द पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3. I hope this question is clear to you. Let's now move on to another question.
सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव वन लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम। सो इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास खाली एक लोन पेयर ही है सेंट्रल एटम में। तो ये आपका VSEPR थियोरी है, अगेन उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम फटाफट इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले ClF3 की बात करूँ, टी शेप स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पर इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 तो इसके लोन पेयर बच जाते हैं और 3 ये बॉन्ड पेयर बना लेते हैं फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ कितने लोन पेयर हैं, 2। ऐसे ही अगर मैं XeO3 की बात करूँ तो XeO3 के पास होता है Xe, ये हो गया, इसके पास 8 वैलेंस होते हैं, 3 इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए पाई बॉन्ड, और यहाँ पर लोन पेयर कितना आ गया, 1। अब अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन BrF5 है ना, तो एक लोन पेयर आ जाएगा और इसने 5 बॉन्ड पेयर बना लिए। तो आप इनके स्टेरिक नंबर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके देख सकते हो। यहाँ पर भी लोन पेयर कितना आ गया, 1। अब अगर मैं HCF4 की बात करूं तो HCF4 में क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, और Xe के पास 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंस में कितने 8, तो लोन पेयर कितने हो गए, 2। मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो कि इनके स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाओगे। ऐसे ही अगर मैं O3 का बनाना चाहूँ तो O3 का कैसे बनेगा, O डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पर और एक लोन पेयर होता है। तो इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 1। ऐसे ही अगर मैं NH3 की बात करूँ, ये तो सभी को आता होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर कितने लोन पेयर हो गए, 1। टोटल अब काउंट करो, अब तो बस सबके स्ट्रक्चर्स बन गए, 1 2 3 4। तो टोटल क्या हो जाएंगे, 4 ऐसे कंपाउंड्स हो जाएंगे जिनके पास एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम में। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखना था और ये देखना था कि किसके सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर है। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर उसने कुछ स्पीशीज़ दी हुई है और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है और वो पैरामैग्नेटिक भी है। तो इनमें आप क्या करोगे, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं सॉरी, सो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती है उनके बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो हम उनको अलग अलग क्लासिफाई कर लेंगे, और अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिमिलरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली का भी 1 होगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप एक एक का कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखोगे और ये देखोगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है और कौन पैरामैग्नेटिक भी है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं B2 की बात करूँ तो B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना, क्योंकि उसके पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑल्सो पैरामैग्नेटिक भी होता है। ये आप चेक कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। अगर मैं हीलियम 2 की बात करूं, O2 2 नेगेटिव की बात करूं, Ne2 2 की बात करूं, F2 की बात करूं और H2 की बात करूं, तो इन सब के भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 के ही इक्वल आते हैं। ठीक है, पर ये सारे क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। आप इनका बॉन्ड भी बनाकर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और अगर O2 2 की बात करूँ, इसका तो होता ही बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ B2 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने पैरामैग्नेटिक वाली कंडीशन भी ऐड कर दी। ठीक है, तो तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं यहाँ एक एक की कॉन्फ़िगरेशन लिख कर नहीं बता रही हूँ, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, किसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू रीच मी आउट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आप बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर हमारे पास 26th क्वेश्चन है, विच सेज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सल्फर एटम। अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो फिर आप नहीं बता सकते हो कि किनके पास सल्फर है, किनके पास नाइट्रोजन है और किनके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, पायरोल का स्ट्रक्चर तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज पायरोल, पायरोल है हमारे पास, लेट मी जस्ट इरेज इट। हाँ जी, तो पायरोल की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग ऑफ विद पायरोल आई हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। Let me draw it here.
सो दिस इज़ माई पायरोल, ये मेरा पायरोल का स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट इज फ्यूरान, फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है बच्चा आपका, ठीक है, ये आपका फ्यूरान हो गया। थायोफीन में सल्फर होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने पढ़े थे ना जिनमें ये वाले होते हैं, ये आपका थायोफीन हो गया। नेक्स्ट है आपका सिस्टीन, ये सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो सिस्टीन अमीनो एसिड में आपका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपका एक अल्फा अमीनो एसिड होता है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O होता है, OH होता है, यहाँ आपका SH होता है और यहाँ आपका NH2 होता है। सो दिस इज़ योर सिस्टीन। सिस्टीन हमें पता होता है कि सल्फर एटम कंटेन करता है, टायरोसिन हमें पता होता है कि OH एटम कंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स ही हैं मेरे। तो यहाँ पर ये मेरा डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा और यहाँ मेरा NH2 हो जाएगा, यहाँ मेरा OH हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर टायरोसिन। टायरोसिन में आपका OH ग्रुप होता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ना, आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा एटम होता है। दो द कंपाउंड्स गिवन टू यू आर नॉट डिफिकल्ट, बट आई डू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि कभी कभार याद नहीं रहता, तो एक नज़र मार लिया करो बस। तो ये आपका पिरिडीन होता है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका और आप देख लेना कि इनमें से किसके पास सल्फर एटम है। तो थायोफीन के पास एक सल्फर एटम है, सिस्टीन के पास सल्फर एटम है और किसी के पास नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2। अंडरस्टूड? सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? रेडी फॉर इट? ओके, बस 3-4 questions और and then we are done for this video. So here we have another question which is, through a zinc sulfate solution 0.015 ampere current was passed for 15 minutes. What is the mass of zinc deposited? अब देखो ये क्वेश्चन तो फेवरेट है जेई का और हर बार एक नए क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है, दैट इज़ फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इवन इफ़ यू डोंट नो द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आप इसमें जनरल यूनिटरी मेथड यूज़ करो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर हियर। तो उसने बोला एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है जिसमें से मैंने 0.015 एम्पियर का करंट पास करा, मतलब आई जो है वो कितना है 0.015 एम्पियर। कितनी देर के लिए पास करा? 15 मिनट के लिए पास करा। अब उसने बोला है कि कितना मास जिंक का डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है, और एटॉमिक वेट दिया हुआ है। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। यहाँ पर आप एक रिलेशन तो पढ़ते ही हो, कितना मास डिपॉजिट होता है, Z इंटू आई इंटू टी, राइट, Z इंटू आई इंटू टी। दिस इज द मास डिपॉजिटेड एज पर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पर Z आपका केमिकल इक्विवेलेंट होता है, जहाँ पर आपको अपना इक्विवेलेंट वेट लेना होता है ना। बाकी सब तो सेम ही है यहाँ पर। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको अपने टाइम को सेकंड्स में ज़रूर कन्वर्ट करना है बच्चे। ये वाली जो होती है ना मिस्टेक, आई सी ऑफन स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक, आप कन्वर्जन भूल जाते हो। तो आप 15 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर आंसर। तो यहाँ से आपको Q मिल जाएगा, इनके मल्टीप्लिकेशन से आपको Q मिल जाएगा विच इज़ I इंटू टी, एंड वंस यू हैव फाइंड योर Q आपको उसे Z से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट आई विल राइट कि कितने मोल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के पास हुए। कितने मोल्स पास हुए? जितना आपने चार्ज पास करा 0.015 इंटू 15 इंटू 60, राइट, ओवर 96500। बेसिकली आपका जो जिंक है वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूटता है, तो 2 फैराडेज का चार्ज है ना। तो यहाँ पर आपको 2 फैराडेज 96500 डिपॉजिट करते हैं, तो कितना मास जो है आपका जिंक का डिपॉजिट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, आप 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना, इंटू 0.015 इंटू 15। लेट मी राइट इट मोर क्लियरली, इट इज़ 1/2। मैं 2 से इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपका चेंज है, तो 2 फैराडेज इतना चार्ज डिपॉजिट करता है, तो 1 फैराडे कितना करेगा, 1/2 इंटू 0.015 इंटू 15 इंटू 60 ओवर 96500। आपने इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका इक्वल आ जाएगा 0.00007 के इक्वल आ जाएगा।
एंड आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, कितना मास जो है वो जिंक का डिपॉजिट हुआ होगा। तो आपको क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। दिस वाज मोल्स, ये आपके मोल्स थे। मोल्स आपको पता लग गए, आप इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0.00007 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास था 65.4 एंड दैट विल बी गेटिंग एज 4.58 मिलीग्राम्स। अब उसने आंसर आपसे मिलीग्राम्स में पूछा था, मतलब यहाँ पर आपको 10⁻³ की फॉर्म में मिलेगा इफ़ यू राइट इट इन ग्राम्स, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 4.58 मिलीग्राम्स। अब मैं बेसिक क्रक्स रिवाइज करवा देती हूँ इस क्वेश्चन का। हमने क्या करा, इसका आंसर सबसे पहले 4.58 होगा, ये आपको नोट करना था। एंड सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। चार्ज किस फॉर्म में दे रखा है, करंट और टाइम के फॉर्म में दे रखा है। टाइम को आपको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय टाइम, I इंटू टी विल गिव यू Q। सो आपको पता है कि 2 फैराडेज कितना डिपॉजिट करता है। अब यूनिटरी मेथड निकाल लो कि 2 फैराडेज आपका 65.4 डिपॉजिट करता है, तो 1 फैराडे कितना करेगा, और जो आपका चार्ज आया यहाँ पर I इंटू टी की मल्टीप्लिकेशन से वो कितना करेगा। तो बस मेरे को इसको इक्वेशन से देखना था कि कितने, अगर आपको मोल्स और मास में नहीं जाना है तो ये देख लो कि 2 फैराडे जो है वो डिपॉजिट करता है 65.4 ग्राम्स। तो जो आपका ये वाला चार्ज है 0.15 इंटू 15 इंटू 60, ये कितना मास डिपॉजिट करेगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 96500 से, बिकॉज आपको फैराडेज और कूलम्स इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 96500 से डिवाइड करके, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने ये कैसे करा क्वेश्चन। लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. So here we have osmotic pressure at 273 Kelvin is 7 into 10 raised to the power 5 pascals. What will be the value of X if its osmotic pressure at 283 Kelvin is X into 10 raised to the power 4 pascal? कुछ भी नहीं करना है. इफ़ यू नो द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको रेशियोज लेनी है और रेशियोज लेने के बाद आपको इसे सॉल्व करना है. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यू डिनोटेड बाय पाई 1, सो इट इज़ इक्वल्स टू ICRT1, क्योंकि उसने अलग अलग टेम्परेचर्स पर दे रखा है, और पाई 2 दिस इज़ 1. सो अगर मैं पाई 2 लूँ तो ICRT2, ठीक है. तो फिर इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ पाई 1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू पाई 2 ओवर T2. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. मेरे को क्या निकालना है, पाई 2 निकालना है. सो इट विल बी पाई 1 इंटू T1, सॉरी पाई 1 इंटू T2 ओवर T1, राइट. सो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो. पाई 1 कितना है, 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. T2 कितना है, 283. T1 कितना है आपका, 273. ओके. सो आपने अगर इसको सॉल्व करा है तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 7.256 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल्स. एंड अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे 10 रेज टू द पावर 4 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 72.56 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 पास्कल्स. एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. पाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 10 रेज टू द पावर 4 एंड दिस इज द वैल्यू फॉर x. सो ये इस फॉर्म में था आपका. तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 72.56. सिंस आपको नियरेस्ट इंटीजर के साथ राउंड ऑफ करना था तो इट विल बी इक्वल टू 73. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 73. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियोज लेनी थी एज पर द फॉर्मूला एंड देन यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर. So we have the last question for the day. So here we have the value for Kp and आपको Kc निकालना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन इक्विलिब्रियम का जो बहुत रट कर बोला जाता है कि रट्टा मार लो बस, उसका वही यूज़ करना था. दैट इज़ Kp इज इक्वल्स टू KcRT की पावर डेल्टा Ng. सो अगर मैं डेल्टा Ng निकालूँ यहाँ पर तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -1. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के गैशियस प्रोडक्ट्स को माइनस कर दो, डेल्टा Ng आ जाता है.
KP की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, डेल्टा NG आपने निकाल लिया है, KC निकल जाएगा ना, तो बस वही काम हमको यहाँ पर करना है. सो KP की जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन टू बी 36 इंटू, आपको यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. मैं बार बार यूनिट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिजिकल में आप मार यूज़ में खाते हो. KC निकालना है. R की वैल्यू आपको ATM में ही गिवन है 0.0821 ATM पर लीटर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर दैट इज़ 300. तो आपकी केल्विन इन्वर्स से केल्विन तो कट ही गई है, और डेल्टा NG इज़ -1. ठीक है, तो KC अगर मैं निकालूँ तो इट विल बी 36 इंटू 10⁻², इंटू सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इधर, इंटू 300. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, सारी यूनिट्स एज इट इज़ कैंसिल आउट हो रही है. सो इट विल बी इक्वल्स टू 8.86 दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू 9. तो जो आपका इसका आंसर है वो किस में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा. दैट इज़ इक्वल्स टू 9. सो आंसर इज़ 9. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हमने इस पेपर में डिस्कस करे समझ आए होंगे. इन केस आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हो आप बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, एंड यू कैन फील फ्री टू रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So till then, we'll meet again in the next set of video wherein we'll be discussing the Shift 2 paper of 29 January. Till then, wish you happy learning.